Hello students, I hope you all are fine. Today we will continue with lesson 1 of Vistas, the third level. The third level. In reality there were only 2 levels where at Grand Central Station, but Charlie, the protagonist of this story, the main character of this story, he started believing that there was a third level also that could take him to the past, and the way to third level was Grand Central Station. Grand Central Station पर ही उन्हें लगता था that there was a third level. Sam, psychiatrist friend of Charlie, called it waking dream wish fulfillment. चाहते थे चार्ली की ये फुलफिल हो जाए, इसीलिए वो ऐसा करते थे. अब ऐसा सोचने लगे थे, ऐसा सैम का कहना था. चार्ली की हॉबी क्या थी? चार्ली की हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन, और उसे वो टेम्परेरी रिफ्यूज़ कहते. अब एक दिन की वो घटना बता रहे हैं, यहाँ एज भी बताइए चार्ली की, इसको भी मार्क कर लें. हाउ ओल्ड वॉज चार्ली? वॉज 31 years old. नेम ऑफ चार्लीज वाइफ लुइसा. One day when he was working late in the office, then he went to the Grand Central Station, GCS we'll call it now, GCS, and there he found a new tunnel, and when he entered into it, he thought that he was going somewhere wrong, but he kept on walking and he finally reached to the third level. And there he noticed some unusual things, and to make sure, how did he make it sure? He confirmed it by when he noticed the newspaper at the foot of the newspaper boy. It was the world which has not been published for years. Then he went to ticket window because he wanted to go to Galesburg, Illinois, and he gives a description of Galesburg. How would Galesburg look? He went to the ticket window. The clerk told him the fare, but the clerk refused to accept the money because these were not in these notes were, those bills were not prevalent those days. उन दिनों वो bills, वो notes नहीं चलते थे. And that was that. I left the same way I came. और चार्ली वहाँ से तुरंत वापस हो गए, क्योंकि he said that jail was not good even in 1894. Remember the year when he went to, or he imagined that he went to to the third level of Grand Central Station. Next day, what did Charlie do? During lunch hour, he withdrew $300. He had this much of saving in his bank account, $300, and then he withdrew almost all the money. Why? To buy old style bills. क्योंकि उसे पुराने bills खरीदने थे. Reason being हमें पता है, he wanted to buy 2 tickets to Galesburg, क्योंकि वो पास्ट में जाना चाहते थे, 2 टिकट गेल्सबर्ग के लिए लेना चाहते थे, और वो केवल कैसे पॉसिबल थी? उस समय की करेंसी लेकर. And it really worried his psychiatrist friend. What was the name of psychiatrist friend? Sam. You can buy any old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. कहते हैं काफ़ी अमाउंट पे करना पड़ता है. And how much? अब ये मार्क कर लें, $300 bought less than 200 in old style. पुरानी करेंसी उसे कितने मिली? $200 से भी कम मिली. But he didn't care, क्योंकि वो तो यही सोचकर खुश थे that he would go into the past, जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी दूर है. और कहते हैं महंगाई भी नहीं थे, कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्स कॉस्टेड ओनली 13 cents a dozen. That was the cost of eggs in 1894. But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often enough. Then Charlie tried again and again, but he could not find the way. Why? Because he was looking for it consciously, but consciously वो उसे ढूंढ रहे थे. And we know this is not that Grand Central Station, the third level was not in could not be found consciously, क्योंकि it was only imagination of Charlie, pure imagination, nothing else. Okay, तो इसीलिए उसे वो थर्ड लेवल नहीं मिला. But Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. जब उन्होंने अपनी वाइफ को इस बारे में बताया तो वो परेशान हो गई. अरे आप किसी को ये कहेंगे कि जो चीज़ें हैं ही नहीं आपको वो दिखाई दे रही हैं, तो कोई भी परेशान होगा. और पत्नी ने बार बार कहा तो चार्ली ने उसे ढूंढना छोड़ दिया और फाइनली क्या करने लगे? कहते हैं आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन से खुश था.
but now we both are looking every weekend because now we have a proof that the third level is still there. कहते हैं लेकिन अब हम दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं, लुइसा और चार्ली। क्यों? कहते हैं अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल है। अब क्यों, क्या हुआ आखिरकार? बिकॉज कहते हैं सैम वीनर डिसअपीयर्ड, हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। सैम वीनर जो थे एक दिन वो गायब हो गए, किसी को नहीं पता कहाँ, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर and he always said he liked the sound of the place and there that is where he is all right in 1894। कहते हैं क्योंकि मैं सैम को हमेशा बताया करता था गेल्सबर्ग के अपने किस्से, स्कूल गए थे राइटर वहाँ पर, उन्होंने चार्ली, उन्होंने अपना बचपन बिताया था वहाँ। कहते हैं मैं उन्हें हमेशा इस बारे में बताता था और सैम को बहुत अच्छा लगता, उन्होंने हमेशा इच्छा जाहिर की वहाँ जाने की और मुझे यकीन है अब सैम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये रियलिटी नहीं है। अब वो एक इसके लिए एग्जाम्पल तो देते हैं और राइटर ने हमें बड़ा इस तरह से छोड़ा है कि आप अपने जजमेंट खुद करें, आप अपने गेस वर्क करें कि आपको क्या लगता है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। यहाँ से आप मार्क करेंगे व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब नई स्टैम्प इशू की जाती है तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, बाय एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल एंड पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। उस पर जब पोस्ट मार्क लगती है तो उससे डेट पता लग जाती है। तो ये फर्स्ट डे कवर कहा जाता है क्योंकि स्टैम्प को ये एक तरीका होता है अपने पास वो स्टैम्प कलेक्शन में भेजने का कि वो किस तरह से वो किस दिन इशू हुई उस पर स्टैंप लग जाएगी पोस्ट ऑफिस की और नई स्टैंप है वो पहले दिन उसे खरीदा जाता है। द एनवेलप इज कॉल्ड, उस एनवेलप को कहा जाता है, दैट एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, उस लेटर को नहीं, बिकॉज दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि अपने ही एड्रेस पर भेजा है तो उसमें कुछ नहीं लिखते, एक ब्लैंक पेपर भेजते हैं। That night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. कहते हैं मैं फर्स्ट डे कवर्स अपने देख रहा था, एक मुझे फर्स्ट डे कवर दिखाई दिया जो इससे पहले वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे अभी दिखा और वो ग्रैंडफादर के एड्रेस पर भेजा गया था। That was the address on the envelope set, गेल्सबर्ग वाले घर पर, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed it, and yet I didn't remember it at all. कहते मुझे तो ध्यान भी नहीं। The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. पुरानी स्टैम्प थी, 6 सेंट की, प्रेसिडेंट गारफील्ड की तस्वीर थी। और एनवेलप जब वो फर्स्ट डे कवर उनके पास आया होगा कहते हैं तो ग्रैंडफादर ने देखा ही नहीं होगा और उनके कलेक्शन में चला गया। उसमें एक लेटर था और वो लेटर लिखा था सैम ने, ये एड्रेस है गेल्सबर्ग का, उसमें लिखा था चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। देखिए सैम साइकेट्रिस्ट है, but he said that he always wanted to believe that Charlie is right about the third level, the level that could take him to the past. वो हमेशा से मानना चाहते थे and finally he started believing that. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks and right now down the street at the Dalles, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Sing Nelly Home. अब वो क्या कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक थे थर्ड लेवल के बारे में, गेल्सबर्ग बहुत ही अच्छी जगह है, जैसा डिस्क्रिप्शन चार्ली ने हमें यहाँ बताया था गेल्सबर्ग के बारे में, किस तरह के लोग हैं, कैसे रहते हैं, वही डिस्क्रिप्शन सैम यहाँ बताते हैं। बेसिकली क्योंकि वो सैम को ये सब चीज़ें बता चुके थे तो सैम यही सोच रहे थे इस बारे में और इसलिए ही उन्होंने ऐसा कुछ लेटर में लिखा। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लैमनेड, लैमनेड होता है नींबू पानी। Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's birth, believe me. वो कहते हैं ढूंढो आपको मिलेगा। लेकिन क्या है, सैम बेसिकली अब इतना उस बात को बिलीव कर चुका है कि वो भूल गया है कि हाँ ये रियलिटी में नहीं है और वो सोचने लगा है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। और वो नोट किसका था, वो लेटर सैम का। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of forced currency. सैम ने तो $800 की पुरानी करेंसी खरीद ली। एंड दैट ought टू सेट हिम अप इन अ लिटल नाइस हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। ही ऑलवेज सेड दैट दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू।
कहते हैं अब $800 की उन्होंने पुरानी करेंसी खरीदी है और वहाँ उन्होंने अपना एक नया बिजनेस कर लिया होगा। और नया बिजनेस क्या है जो वो हमेशा से करना चाहते थे? खेती का, हे फीड ग्रेन बिजनेस, इस तरह का। उनको वो हमेशा कहते थे कि वो हमेशा ये चाहते थे ही कि डू दैट एंड सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने बिजनेस पर नहीं जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। इलिनॉइस गेल्सबर्ग में तो एटलीस्ट 1894 में तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, व्हाट वाज सैम्स ओल्ड बिजनेस? सैम का पुराना बिजनेस क्या था? ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट, वो एक मनोवैज्ञानिक थे। सो दिस वॉज द लेसन। द राइटर लीव्स अस इन मिस्ट्री, हमें एक मिस्ट्री, एक रहस्य में छोड़ते हैं कि वेदर द थर्ड लेवल एग्जिस्ट और नॉट। इन रियलिटी देयर वाज नो थर्ड लेवल। सैम वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ मॉडर्न डेज ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस, एंड देन that is why he always wanted to believe in Charlie's imagination of third level, and he finally started believing about the third level, और उन्होंने उसमें यकीन करना शुरू कर दिया। ही परहैप्स सेटल्ड इन सम ऑफ द कंट्री एरिया, कहीं किसी कंट्री एरिया में वो सेटल हो गए होंगे, बट ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही वॉज इन द थर्ड लेवल, ऐसा वो सोचने लगे थे सैम। सो दिस वॉज द लेसन, रीड इट, थैंक यू।